Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter International Organizations, and in the previous class, we were discussing about that United Nations organization was not the first international organization. Before the foundation of UNO, there existed another international organization that was named as League of Nations, which was established after the end of the First World War through the Treaty of Versailles. And this League of Nations was created so that the world should not face another such war as the world faced during this 1914 to 1918, the First World War. So, as we know, the world faced another war, Second World War, in the year 1939, and in this way we can say the League of Nations was not a successful organization, it was a failure. And we see that when Second World War started and the devastation caused by Second World War was very huge, and because of that we see that during the war the efforts were started by the leaders of the Allied powers for the formation of a new international organization. Okay, so in this direction, for the formation of an international organization after the end of the Second World War, the first step was taken by the President of America, Franklin D. Roosevelt, and the Prime Minister of UK, Winston Churchill. They both signed Atlantic Charter in the year 1941. The month was August. So in August 1941, both these leaders signed Atlantic Charter. That was the first step towards the foundation of a new international organization. And then we have discussed about this in the previous class, है ना? अगस्त 1942 में अटलांटिक चार्टर बनता है, अटलांटिक चार्टर पे साइन होता है, and then in January 1942, what happened that the Allied countries, 26 Allied countries who were fighting against the Axis power, they met in Washington DC and they supported the Atlantic Charter, and these 26 countries signed the declaration by United Nations. United Nations. Which are the United Nations? These 26 countries. These 26 countries who were Allied powers, they were united, and these United Nations have declared. What they declared? They declared for the formation of an international organization. Okay, so in January 1942, it was in 41, अटलांटिक चार्टर पे जो साइन हुआ वो 1941 में हुआ, और उसके बाद जनवरी 1942 में डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस जो था वो किया गया, दैट उस पर साइन किया 26 अलाइड कंट्रीज ने. ओके, डिक्लेरेशन by United Nations. 26 countries signed on this declaration, and then we see in the and this declaration by United Nations was signed in Washington. Okay,
And now we see another step towards the formation of United Nations. That was in December 1943. Tehran Conference was held, and this Tehran Conference declaration was held between three powers: US, Britain and Soviet Union. So December 1943, Tehran Conference declaration. Okay, this Tehran Conference declaration was done by three powers: US, Britain and USSR. By US, UK and USSR. Okay, and then we see in February 1945, Yalta Conference was held in February 1945. In this Yalta Conference, again the leaders of these three countries, US, UK और USSR, जो कि उस समय they were the most powerful countries, तो इन तीनों countries के जो leaders थे, US का leader रूजवेल्ट, UK के leader चर्चिल, और उस समय USSR में जो रूल कर रहे थे वो स्टॉलिन थे. USSR जो बना वो लेनिन ने बनाया. लेनिन के बाद स्टॉलिन का रूल था, और स्टॉलिन के रूल के अंदर ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है. तो ये तीनों जो नेता हैं, तीनों जो लीडर्स हैं, रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टॉलिन, ये तीनों की याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है, और इसमें ये डिसाइड करते हैं दैट दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रपोज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन. जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वो बनाना चाह रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, उस पर एक यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस होना चाहिए. यूनाइटेड नेशंस वही नेशंस जिन्होंने अटलांटिक चार्टर पे साइन किया था इन जनवरी 1942. ठीक है. सो नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो क्या है? फरवरी 1945 याल्टा कॉन्फ्रेंस. फरवरी 1945 याल्टा कॉन्फ्रेंस. दिस वॉज ऑल्सो अटेंडेड बाय द बिग थ्री. बिग थ्री वही हो गए, US, UK और USSR, एंड यू हैव टू रिमेंबर द लीडर्स ऑल्सो. ठीक है. और यही डिसाइड हुआ कि एक कॉन्फ्रेंस होगा यूनाइटेड नेशंस का, जिसमें कि जो भी हम प्रपोज कर रहे हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में डिसीजन लिया जाएगा. ठीक है. एंड देन अगेन इन द मंथ ऑफ अप्रैल में, इन द सेम ईयर 1945 के अप्रैल में ही हम देखते हैं कि क्या होता है कि इस दोनों मंथ में, अप्रैल और मई में, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस होता है अलाइड पावर्स का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बनाने के लिए. और ये कहाँ होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस? इट वाज हेल्ड इन सैन फ्रांसिस्को. ठीक है. तो ये 2 मंथ लंबा ये कॉन्फ्रेंस चला, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस. अप्रैल में इट वाज यूनाइटेड Nations Conference, which was held in San Francisco. ओके. तो सैन फ्रांसिस्को में यह मीटिंग होती है. उसके बाद 26 जून 1945 को फिर से UN चार्टर पर साइन करते हैं यही 50 नेशंस. ठीक है. जो अभी तक 26 नेशंस जिन्होंने डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस पे
किया था, जो डिक्लेरेशन पे साइन 26 नेशंस थे, अब ये बढ़ कर के जून 1945 में 50 नेशंस हो जाते हैं। और ये 50 नेशंस जो हैं वो जून 1945 को यूएन के चार्टर पे, चार्टर का मतलब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, यूएन का जिसमें रूल्स सारे लिखे हुए हैं, उसी को हम यूएन का चार्टर कहते हैं। तो चार्टर का फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ हो गया था, उस पर साइन किया 50 कंट्रीज़ ने जून 1945 में। और इसमें ये जो साइन हुआ था वो जून 26 को हुआ था। और इस पर साइन करने वाला जो पोलैंड था वो अक्टूबर 15 को साइन किया 1945। और इसलिए यूएन के 51 ओरिजिनल मेंबर माने जाते हैं, फाउंडिंग मेंबर्स, इंक्लूडिंग पोलैंड। जून 1945 में साइन करने वाले जो कंट्रीज थे वो 50 थे, ठीक है। जून 1945 में 50 कंट्रीज ने साइन किया। और जो 51st कंट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं, पोलैंड की, उसने 15 अक्टूबर को साइन किया था, ठीक है। 50 नेशंस साइंड यूएन चार्टर, ठीक है। तो ये 50 नेशंस जो हैं वो दे आर द ओरिजिनल मेंबर्स, दे आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूएन, प्लस 51 फाउंडिंग मेंबर्स कहे जाते। तो 50 जो थे उन्होंने तो 26 जून को कर दिया, पोलैंड ने 15 अक्टूबर को किया था। और फिर पोलैंड को भी फाउंडिंग नेशंस में ही रखा जाता है, ओके। सो इसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को ये जो यूएनओ है ये इसका फाउंडेशन हो जाता है, ठीक है। अक्टूबर 24 इज सेलिब्रेटेड एज यूएन डे, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही यूएन का फाउंडेशन हुआ था। और इंडिया ने 30 अक्टूबर को इस पे साइन करके चार्टर पे इंडिया ने यूएन को ज्वाइन किया था, 30 अक्टूबर 1945। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इंडिया ने कब ज्वाइन किया, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूएन, is 51, ठीक है। एंड यूएन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर। फाउंडेशन ऑफ यूएन was done on 24 October 1945. And India joins UN on 30th October. So these dates are very much important because now you have MCQs in the board exams. तो ये एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूज़न या याद करने में किसी भी तरह की वो नहीं होनी चाहिए कि नहीं याद हो रहा है, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। सो what we are seeing ki on the one hand second world war was going on, loss of life, loss of property was happening during the war, and on the other hand there was effort for the maintenance of world peace and security, and for that purpose only this international organization was created. And we know that the devastation done
during the Second World War was far more dangerous than the impact of the First World War. So जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के कुछ ही समय के अंदर ये समझ में आ गया कि हमें फिर से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है. जो लीग ऑफ नेशंस बना था, दैट लीग ऑफ नेशन वाज नॉट सक्सेसफुल इन अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, and now there is need of new international organization, and thus this United Nations organization come into existence. And now we see what are the objectives of the UN. The first and the most important objective of the UN is to prevent international conflicts. To prevent international conflict, to prevent wars, try to solve the problems between the states through negotiations, है ना. So the main objective of the foundation of this organization was to stop the conflicts between the states escalating into war. ठीक है. सबसे पहली चीज़ तो जो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकना है. अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो वॉर में नहीं, उनको वॉर में नहीं तब्दील होना है. ठीक है. जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको पीसफुल मीन्स से सॉल्व करना है. इस बात की पूरी कोशिश की जानी है कि जिस किसी भी कंट्री के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स वॉर में नहीं बदलें, बल्कि उनको पीसफुल मीन्स से, जैसे नेगोशिएशंस के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू उनको सॉल्व किया जाए. ठीक है. तो पहला एफर्ट तो यही है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को वॉर में नहीं चेंज होने देना है. इफ सपोज वॉर ब्रेक्स आउट, है ना, मान लीजिए कि वॉर हो ही जाता है, कितना भी एफर्ट किया गया नेगोशिएशन का, डिस्कशन का, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है एंड वॉर ब्रेक्स आउट. सो इन दैट सिचुएशन व्हाट इज द नीड? इफ वॉर ब्रेक्स आउट देन द नीड वाज टू लिमिट, द ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द एक्सटेंट ऑफ हॉस्टिलिटीज. जो हॉस्टिलिटी है बिटवीन द कंट्रीज उसको लिमिट करे. जो वॉर के कारण जो लॉस ऑफ लाइफ होगा उसको, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होगा उसको मिनिमाइज किया जाए, है ना. सो कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह से डील करना है ताकि जो ह्यूमैनिटी है उसको कम से कम नुकसान हो, ये पहला ऑब्जेक्टिव था. और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन का सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स. जो डिफरेंट मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करना. सो कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन लाना. एंड हियर इट इज ऑल्सो दिस कोऑपरेशन is also connected with world peace, because in modern time what we find that most of the conflict between the countries arise because of lack of social and economic development. Social and economic reasons are one of the most important reason for conflict between the states in modern times. Territorial disputes उतना नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है जितना सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो लोगों के हैं वो एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है कॉन्फ्लिक्ट का. एंड इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स व्हाट इज रिक्वायर्ड? द रिक्वायरमेंट इज कोऑपरेशन, है ना. द रिक्वायरमेंट इज टू ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर टू इम्प्रूव द social and economic condition all over the world. And this bringing together of the country will be done, of the countries, bringing together of the countries will be done by the UN only. So this is the aim कि जो member countries हैं उनके बीच में
कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करना, ताकि जो भी इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसको सॉल्व करने के लिए वो एक दूसरे का साथ दें, और अगर सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कम होंगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होंगे और वर्ल्ड पीस को भी एंश्योर किया जा सके। ओके, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स, है ना। Objectives of UN. What is the objective of UN? The objective of UN is to prevent international conflict. अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको पीसफुल मीन्स से सॉल्व करना, उसके सॉल्यूशन के लिए वॉर की तरफ जाने से रोकना कंट्रीज को। और अगर इफ दिस एफर्ट द यूएन फेल्स इन दिस एफर्ट, if war breaks out, then also it is the objective of the UN that it should limit the extent of devastation, it should limit the extent of hostilities, ठीक है। So this is the first objective, and the second objective is to facilitate cooperation. ओके, फैसिलिटेट कोऑपरेशन, ताकि सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, और जब सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी अपने आप कम हो जाएंगे, एंड इट विल कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, सो नाउ वी विल सी मेंबर्स ऑफ UN. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर in UN? आज के समय में UN में कितने मेंबर्स हैं? So the UN started with 51 members. As we have seen, 51 members are the founding members of UN, and now at present UN has 193 members. 193 members. The latest member, or we can say the newest member in the UN is South Sudan. South Sudan is the latest member of the UN, which became the member of UN in the year 2011. 2011 के बाद से कोई भी नया मेंबर नहीं आया है UN में. South Sudan is the last member, latest member. Okay, and now we will see the ऑर्गन्स ऑफ द यूएन. यूएन के जो मेन ऑर्गन्स है, हालांकि यू आर नॉट सपोज टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, स्टिल व्हेन यू आर स्टडिंग यूएनओ फॉर द फर्स्ट टाइम, you must know the main organs of the UN, because in the absence of knowing about the organs of the UN, your knowledge will be will be incomplete, है ना. तो अब हम जो UN के सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से, मेन ऑर्गन्स कौन से हैं. तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, पहला ऑर्गन हम जिसको कहेंगे वो है जनरल असेंबली. ठीक है. जनरल असेंबली में जो है वो यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गन है. इसको हम कहेंगे कि इसमें
जो भी यूएन का मेंबर होता है वो जनरल असेंबली का मेंबर होता है। जो भी कंट्री यूएन की मेंबर है वो जनरल असेंबली का मेंबर होगा ही। वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को जनरल असेंबली में भेजते हैं। तो आज के समय में अगर हम देखें तो जनरल असेंबली की मेंबरशिप कितनी है? 193, क्योंकि यूएन में 193 मेंबर्स हैं, तो जनरल असेंबली में भी 193 मेंबर्स ही होंगे, है ना। दूसरी चीज़, यहाँ अगर हम जनरल असेंबली को देखें तो दिस असेंबली इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, बिकॉज एवरी member country sends one representative in general assembly, and each representative of each country has one vote only, and all the value of the vote is also equal. There is no difference between the value of the vote of the countries. All countries are completely equal. One nation, one vote. Yeah, we can see one member, one vote, and whatever decision is taken in the general assembly, that is taken by the majority. ठीक है, decisions are taken by मेजॉरिटी। तो इसमें किसी भी तरह का इनइक्वालिटी की बात नहीं है, ये पूरी तरह से इक्वालिटी पर बेस्ड है। ओके, और जो मेजर डिसीजंस होते हैं उसमें मेजॉरिटी जो होती है वो 2/3 मेजॉरिटी से डिसीजन होते हैं। ठीक है, मेजर डिसीजंस रिक्वायर अ 2/3 मेजॉरिटी। Major decisions are taken by 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है, तो इस तरह से जो जनरल असेंबली है वो काम करती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दिस असेंबली इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। एवरी कंट्री has one representative there, every country has one vote, and the value of the vote is also same. The decisions are taken by majority, the important decisions are taken by 2/3 majority, but the most important thing is that the decisions taken by the general assembly is not binding on the members of the UN. It can only give recommendation, it can only recommend what to do, है ना, क्या करना चाहिए, what should be done, ये सिर्फ recommend कर सकती है कि क्या किया जाना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। इट्स डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द मेंबर कंट्रीज। तो यहाँ पर ही हम दैट इज वाई इसको क्या कहा जाता है, टॉकिंग शॉप। इस तरह की चीज़ें जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि ये सिर्फ टॉकिंग शॉप है, यहाँ पर सिर्फ लोग बातें करते हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जो भी डिसीजंस लेने जा रहे हैं दोज डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द मेंबर स्टेट्स, दोज डिसीजंस आर ओनली रिकमेंडेशन, है ना। तो ये है हमारा जनरल असेंबली। अब जनरल असेंबली के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन है, सिक्योरिटी काउंसिल है। जनरल असेंबली के बाद सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो हम उसके बारे में देखेंगे। सो द नेक्स्ट ऑर्गन इज सिक्योरिटी काउंसिल। Security Council is the most powerful organ of the United Nations organization, because Security Council is the organ which has the power to take decisions which are binding
on the members of the UN. This is the power of Security Council, because we have seen the General Assembly can only recommend. It has not the power to take such decisions which are binding on the members of the UN. But Security Council has the power to take such decisions which need to be जिसको कि मानना पड़ेगा, मेंबर स्टेट्स को मानना पड़ेगा, है ना. तो ये जो है ये सिक्योरिटी काउंसिल को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है. और इसीलिए हम क्या देखेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बहुत ही छोटा सा ये ऑर्गन है, जिसमें आज के डेट में प्रेजेंटली 15 मेंबर्स हैं. और ये 15 मेंबर्स के बीच भी इक्वालिटी नहीं है ना. इन सब चीज़ों को, सिक्योरिटी काउंसिल के कंपोजिशन और पावर्स के बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे.